So hello student, exercise 4.4 we are starting here. Okay, now you can see we have to find the nature of the root, and nature of the root decides who? Discriminant, right? So first of all we will check it is in a standard form or not. Okay, it is in a standard form. If I just compare with ax square plus bx plus c equal to 0. So what is a here? 2, b minus 3, c and 5. देखिए कभी भी इक्वेशन को देखकर डिसाइड कभी नहीं कर सकते. कभी कभी लगता है सर ये तो रियल ही देगा, ये भी रियल देगा, इक्वेशन ठीक सी लग रही है, बट कभी ऐसा होता नहीं है. इट डिपेंड्स हु ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बी चेक करेंगे. बी कितना, तो बी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज बी? 4 इंटू 2 5, व्हाट इज 9. Oh, you can see here it is coming what? Minus 31. So what is the nature? Roots are imaginary. Yes or no? So it means we cannot find the root now. We can find, but we will not able to find the exact result. Right? Now, okay, for this we will check what is A. 3, what is b? Minus 4 root 3 and c this one. So we will check again. D is equal to b square minus 4ac. What is b? Minus 4 root 3 square minus 4 into 3 into 4. If you see this one, 4 square 16, 3 is a 48 and it is 48. It is 0. Means what? Roots are equal, right? If roots are equal, so can we find the root? What is the formula? Minus b plus minus root d upon 2a. I am writing d in place of b square minus 4ac. So minus b, what is minus b? Minus, and one minus we are putting here and one minus here. So it means it will be plus, plus minus, and what is d? 0. So definitely 2 into what is a? 6. So you can see there 4 root 3 upon 6. So it is 2 and it is 3. So it is 2 root 3 upon 3. So it means there are two roots. One is 2 root 3 upon 3 and another is also 2 root 3 upon 3. Clear? Roots are equal. This is the nature. If the b square minus 4ac is 0, so roots will be always equal because b part, discriminant part will be 0. Now coming to the next. Okay, a is equal to 2, b is minus 6 and c is 3. So can you check this one d again? So b square minus 4ac, it is minus 6 square and this is 4 into 2 into 3. So it is 36 and it is also 36. So it is 0. I think now you can find the roots. Definitely roots are equal for this case also. Right? So this was the question number 1, where we are trying to find the nature, and if nature is real or equal, then we are finding the root also. Now in question number 2, we have to find the value of k. Please see this question because this question is very important for board exams. Find the value of k when roots are equal. The question is, now it is given roots are equal. If roots are equal, what is the condition? What happens with the discriminant? So you know very well, if roots are equal, then b square minus 4ac will be equal to 0. If b square minus 4ac will be equal to 0, so what is b here? B is k because coefficient of x is b. So what we will do, k square minus, what is a? A is 2 and what is c? 3. So it will be k square and it will be, I think, 36. So 36 will be here. So k is equal to root 36 and your answer will become plus or minus 6. So this is the way to use again discriminant but in reverse process, because here nature is given and we are putting in discriminant. In the previous one we were trying to find the value of b square minus 4ac and on the basis of the result we are फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है. यहाँ पर
नेचर दिया हुआ है और हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, इक्वल प्रूव नहीं कर रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं कि होगा ही होगा, राइट। सो एक ये था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में प्रॉब्लम क्या है? सेकंड इज द, यू कैन सी इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्क्वायर हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज हमारे लिए ए बी सी जो निकालना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये हो जाएगा 2 3x एंड 6। अब ये देखिए बिल्कुल सही फॉर्म आ गई है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरे लिए ए का काम करता है और ये मेरे लिए बी का काम करेगा और दिस वन विल बी 6 जो कांस्टेंट है। अब सिर्फ हमें क्या है, हमें पता है रूट्स इक्वल है। इफ रूट्स आर इक्वल, roots are equal, then b is 0 and b is what? B square minus 4ac is equal to 0. And what is b? And if you see this one, it is minus 2k whole square minus 4 into what is a, 6 and equal to 0. In this case it will be 4k square और यहाँ पर हो जाएगा 24k। अगर आप देखो यहाँ पर 4k कॉमन आ रहा है तो ये k माइनस 6 यहाँ पर रह गया। इसमें दो चीज़ आती है, इसमें k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k की वैल्यू 6 भी हो सकती है, क्योंकि ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, ये कब 0 होगा? जब k की वैल्यू 6 होगी। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आगे मिल रही है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू जस्ट ऑपोजिट ऑफ नेचर। नेचर इज गिवन एंड वी आर यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। Third question is it possible to design a rectangular mango groove whose length is its twice its breadth? So what we will do, let the breadth is x, so sorry, breadth is x and length will be 2x. So what we will write here, let the breadth of what? Rectangular mango groove, right, be x meter because area is in meter. So length will be, it will be 2x meter and area is also given. So what is area? Area is 800. Now the question is 800 meters square, find its length or breadth, or initially they were asking is it possible. So definitely it is possible, we will see that one. So you know that length into breadth is equal to what? Area, and it is, you can see it, you can write it 3x square, it is 800, so x square will be 400 and x will be, if you see this one, if okay, I am shifting square there because I was thinking if 400 we can place here and we can use identity, that is also another one step. So plus minus 20, minus we cannot consider because लेंथ इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमने क्या लिया? 20 ले लिया। एक्स क्या सपोज किया था? ब्रेथ, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ विल बी 2 into 20, इट इज 40 मीटर। मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो कुछ था भी नहीं है सर, राइट। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? ओके, आई एम डूइंग हियर, सी the sum of the age of two friends is 20 years. Okay, I am doing it fast. Let the age of one friend be x years, right? Means one friend का age मैंने x सपोज कर लिया, तो अगर दोनों का सम 20 है तो मुझे साफ पता लग जाएगा कि जो सेकंड जो फ्रेंड होगा उसकी एज कितनी होगी। उसकी एज ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स ईयर्स, ये हमने केस बना लिया। दो कंडीशंस हमने बना ली, दो एज में वेरिएबल फॉर्म मतलब एज की फॉर्म में लगा लिया। अब हम बात करते हैं 4 years अगो। अब 4 years पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। इसकी एज कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4। दोनों में से 4 साल माइनस हो गया। The product of their ages, मतलब क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो 48 है। अब करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x मुझे मिलेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले x माइनस 4 रखो और इसको 16 माइनस एक्स लिख दो, ताकि ये मोनो ट्राइनोमियल से बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ से देखें, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और ये हो गया प्लस 4x, यहाँ से 48 आ। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रखता हूँ और ये हो जाएगा 20x, राइट, और इसको भी इधर लिया है 64 और ये 48, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, सो इट विल बी 0। अच्छा, माइनस जनरली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में माइनस हम देखते नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं देखते हैं, तो हम क्या करें, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। हमारे लिए ये इक्वेशन फॉर्म। अब करना क्या है, हमें दोनों की एज निकालनी है। तो आपको अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? पहले तो ये क्वेश्चन आया था, डिस्क्रिमिनेंट वाला यूज करें, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी चेक कर सकते हो। बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कभी कभी क्या होता है, कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होने के चांसेस हैं, तो बेटर क्या होता है कि अपना d निकाला जाए। तो d इज विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको b तो देखते ही पता लग गया होगा क्या है, माइनस 20, सो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है और ये 112 है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये 400 है और ये बन जाएगा 448। अब आप देखें क्या हो गया, ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस 48 और माइनस डी आना मतलब क्या, रूट्स आर इमेजिनरी। इससे एक चीज प्रूव हो गया कि जो एक कंडीशन बनी है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है, इससे प्रूव हो जाता है। तो आप यही बोलेंगे, दिस कंडीशन इज, और दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब सपोज आप सोचिए कि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठ जाते तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आप फाइनली इस पर आ जाते, राइट। नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। आपको अगेन रेक्टेंगुलर पार्क देखना है, ठीक है, पेरीमीटर गिवन है, एरिया गिवन है, और आपको देखना है कि लेंथ और ब्रेथ में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो आई थिंक यू कैन डू दिस सम, यू शुड डू दिस सम एज अ होमवर्क, टेक इट एज अ होमवर्क और डू सम प्रैक्टिस। और इसके अलावा कुछ और सम्स भी प्रैक्टिस करना है जिससे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक इसी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। So we will come with the next chapter. So please see the video of the next chapter. Thank you.